The COVID-19 pandemic in India was accompanied by a series of state-mandated lockdowns which severely limited economic activity of informal workers across sectors and trades. One among these informal workers were domestic workers, who were no longer welcome in their place of work and suffered high pay cuts. Domestic workers constitute one of the largest forms of informal work in urban India, alongside construction workers, self-employed workers, informal factory workers, and home-based workers who do not have legal work contracts or claim on employment protection and social protection via their working status. These workers are also often settled migrants in the city, living in rental housing. For several reasons, many of them are without voting rights and welfare entitlement that others from the city and the state may have. A survey of 500 domestic workers in Jaipur, the capital city in the state of Rajasthan in India, revealed that most domestic workers weren't paid their salaries in March 2020, the first month of the nationwide lockdowns in India. By August 2020, 5 months after the initial lockdown, the average monthly earnings of these workers were down from 8,300 rupees to 4,900 rupees, and 25% of respondents were yet to find any work. In this critical moment, the Rajasthan Mahila Kamgar Union, a membership-based organization of workers with over 30,000 domestic worker members, played a crucial role in mitigating the impact of COVID-19 on the lives, livelihoods, and emotional well-beings of workers and their families. The union had been active for over 13 years, advocating for fair wages, improved working conditions, and a better life for domestic workers in Rajasthan. It is one of the largest mobilizing efforts of its kind, which has carved a sustained political space in Jaipur, Rajasthan, to demand decent work and dignity. Throughout the COVID-19 crisis, the union responded to the needs of their members in many ways, extending state relief measures to domestic workers, generating and aggregating relief from non-state sources, or simply being at the other end of the phone to lend an ear. One of its key roles was to represent domestic workers' interest with the state as well as in non-state networks. We interviewed Meva Bharati, a representative and leader of the union, to learn about the relief measures available to domestic workers and the union's effort in making them inclusive and accessible. We specifically focused on food aid provided through different delivery methods. This assessment aims to understand how non-state actors like unions can contribute to social protection systems and how the state can create an enabling environment for it. मेरा नाम मेवा भारती है और मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ। खास करके हम लोग जो घरों में महिलाएं काम करने जाती हैं उनके साथ काम करते हैं। पहले हम प्राइवेट की करें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि शुरुआत उसी से हुई थी। ये लॉकडाउन के तुरंत बाद हम लोगों ने बस्तियों में महिलाओं के साथ बात करना शुरू किया और ख़ास करके हम लोगों ने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो प्रवासी महिलाएं थी और जो घरों में काम करने जा रही थी, क्योंकि महीने का एंड चल रहा था, सैलरी किसी के हाथ में थी नहीं। तो हमको भी आइडिया था कि लोगों के पास राशन की काफ़ी दिक्कत होने वाली है और ख़ास करके जो अकेली बुजुर्ग महिलाएं रह रही थी उनको ज़्यादा दिक्कत थी, या कुछ विडो महिलाएं थी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दिक्कत क्या होती है कि वो 1 महीने का ही राशन ले पाते हैं, अपनी सैलरी के हिसाब से अपने घर में राशन लेके आते हैं। तो हमको भी आइडिया था कि लोगों के पास राशन की काफ़ी दिक्कत होने वाली है और ख़ास करके जो अकेली बुजुर्ग महिलाएं रह रही थी उनको ज़्यादा दिक्कत थी, या कुछ विडो महिलाएं थी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो हम लोगों ने तत्काल हम लोगों ने हमारी जो महिलाओं के हमारे पास नंबर थे वो हमने बात करना शुरू किया और उनको पूछना शुरू किया कि तुम्हारी मोहल्ले में किस तरह की स्थिति है, महिलाओं के पास क्या खाने के लिए है। तो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा था वो काफ़ी नेगेटिव आ रहा था। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, काम किया तो पैसे तो देने चाहिए, और ये भी नहीं है कि इतना साफ मना कर देंगे कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब लेके जाना। पैसे के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी काम करने के बावजूद भी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा, उन महिलाओं से भी फीडबैक लिया कि क्या किया जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो महिलाओं ने अपने स्तर पे कुछ जगह पे जिनके राशन नहीं था बिल्कुल भी,
उनको चावल निकाल के देना शुरू किया। कोई चावल दे रही है, कोई आटा दे रही है, कोई दाल दे रही है, और उन्होंने वो चीज़ शुरू की कि मैंने आज उसको 1 दिन का खाना पहुंचाया है। ये फीडबैक हमारे पास आया तो हम लोग फिर तुरंत एक्टिव हुए और हमने एक्टिव होकर के महिलाओं का एक नेटवर्क बनाया। और उस नेटवर्क में हम लोगों ने जिनके फ़ोन थे, जिनके पास में, उनको फ़ोन करना शुरू किया और उनको भेजना शुरू किया कि लोकली हम जा सकते हैं, बाहर से हम नहीं जा पाएंगे। और महिलाएं, जैसे पुलिस नहीं है, इधर उधर है, तो वो जाती थी महिलाओं के पास, बात करके आती थी। तो अंदर की साइड इतना डरावना नहीं था। जो आपस में लोग रह रहे थे वो तो सब कुछ आपस में ले ही रहे थे, और वो तो आपस में एक ही सरकार बार बार गाइडलाइन दे रही थी कि वो नहीं करना चाहिए, दूरी रखना चाहिए। तो लोग तो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वो दूरी कहाँ से रखेंगे? फिर एक ही बाथरूम काम में ले रहे हैं, दूरी कहाँ से रखेंगे? एक ही नल से पानी भर रहे हैं। फिर हम लोग कोशिश करते कि हम में से जो गाड़ी के हमने एक नंबर लिया था उसमें कोई व्यक्ति जाए और जा कर के थोड़ा हम भी पता करें लोगों में कि हो क्या रहा है। तो उन स्थितियों तक हम लोग गए उस टाइम, और वो फिर रियल स्थिति का भी पता लगा। कुछ लोगों ने अपने घरों में दिखा भी दिया कि देखो राशन है ही नहीं, और सच्ची में था भी नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो हमने कुछ प्राइवेट डोनर खोजे, और उसमें प्राइवेट में कुछ भामाशाह लोग सामने आए। उन्होंने अपनी कॉलोनियों में कुछ लोगों को शुरू किया, वो काफ़ी नहीं था। तो हम लोगों ने फिर, और हमारे जो नेटवर्क थे, जो हम काम कर रहे थे, एक राजस्थान नेटवर्क है, महिलाओं का नेटवर्क है, फिर कुछ NGOs के नेटवर्क थे, कुछ डोनर्स के थे, कुछ कंपनियों के नेटवर्क थे। ऐसे हम लोगों ने खोजना शुरू किया। तो हमने खोजना शुरू किया तो कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड शुरू कर दिया कि हम राशन दे सकते हैं। फिर कुछ लोग डायरेक्ट पेटीएम से कर रहे थे कि हम लोग 10 लोगों का राशन, उस दुकान पे चले जाओ, वहाँ से ये 4 चीज़ें ले लो और इतना इतना ले लो, और वो बिल हमको भेज दो, हम लोग राशन दे देंगे। फिर कुछ इंडिविजुअल डोनर भी आ गए थे कि हम लोग 50,000 रुपये का राशन देना चाहते हैं। कॉलोनी में जो समितियाँ बनी है, तो उनको लगा कि हम लोग भी कुछ अपना श्रमदान कर सकते हैं, या अभी मौका है कि हम लोग कुछ सेवा करें। तो वो अपना लंगर चलाने लग गए, मतलब 10 दिन लंगर चला रहे हैं, उसमें लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस टाइप का ये रिलीफ का एक मिलाजुला चीज़ें चल रही थी, और ये इसी टाइप से पूरा चला फूड का। फिर कुछ जगह पे ये जो हमारी जो महिलाएं हैं जो काम करने जा रही थी, इनके कुछ जगह अच्छे संपर्क हैं। तो इनके जो मालिक लोग थे, जो काम कर रही थी जिन घरों में, उनके भी फ़ोन आए कई लोगों के, और उन्होंने भी कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। तो हम उनको एक लिस्ट दे देते थे कि इस इलाके में 25 लोग हैं और ये लिस्ट हमारे पास है, ये हम आपको भेज रहे हैं, और आप डायरेक्टली इनको आप ये चीज़ दे दीजिए। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद की। और कुछ वो ये जो पार्षद लोग, इन्होंने मदद किया, कुछ पुलिस थानों ने मदद किया। कोई अधिकारी उस टाइम रिटायर हो रहा था, तो वो यही कर रहा था कि मैं कोई पार्टी नहीं कर रहा, मैं 100 लोगों को राशन दे रहा हूँ। तो इस टाइप का चल रहा था पूरा। वो एक LIC ने काफ़ी अच्छा राशन दिया, एक्शन एड ने काफ़ी अच्छे से राशन दिया, फिर ये इसने जोमेटो ने दिया। ऐसे करके ये जो कंपनियां थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे से लोगों को राशन, और ठीक ठाक किट थे इनके राशन के, मतलब करीब करीब 1 महीने का राशन उस किट के अंदर था। उसमें तमाम चीज़ें थी, चीनी, दाल, चावल, चाय की पत्ती, बच्चों के लिए पाउडर वाला दूध, ये सब चीज़ें थी। अब राशन कैसे देंगे, नीड किसकी है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट था। तो हमारे लिए भी नया काम था और चैलेंज भी था कि हम लिस्ट कैसे लेके आए फील्ड से, और वो राशन हम कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको ज़रूरत है। क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज था कि ज़रूरत है वो तो बच जाता है, और जिसको ज़रूरत नहीं है वो डबल ले लेता है। ये जो महिलाएं थी, इनके बच्चों से बात करना शुरू किया और उनको बोलना शुरू किया कि तुम लिस्ट बनाओ। हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया इधर, उस फॉर्मेट में हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन बना करके, और जिनके व्हाट्सएप थे उन महिलाओं को सीधा वो फॉर्मेट भेजा
उस टाइम दिक्कत क्या थी, कोई फोटोकॉपी की दुकान भी खुली नहीं थी, तो कुछ को हम लोगों ने हमारे यहीं ऑफिस से हमने फोटोकॉपी कर करके जहाँ जहाँ हम वितरण कर पा रहे थे वहाँ हमने किया, क्योंकि हम भी नहीं निकल पा रहे थे यहाँ से। तो हम लोगों ने एक गाड़ी की परमिशन ली, जिला उस टाइम पुलिस कमिश्नर ही वो दे रहा था, और वो परमिशन ले करके और उस गाड़ी का वो ऊपर टैग होता है वो लगा करके, और उसमें 1-2 लोग जा सकते थे, उसे हम देख करके वो आते थे। और कुछ फिर वो लिस्टें हम लोगों ने ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मंगाई, और व्हाट्सएप पे ही हम लोगों ने वापस जो सही से नहीं भर पा रहे थे उनको व्हाट्सएप से ही हम ट्रेनिंग कर रहे थे कि ऐसे नहीं, इस लिस्ट को ऐसे सही करो, अभी इसमें ये गड़बड़ है, अब ये ठीक करो। तो जो खाली पहले राशन के लिए लिस्ट आ रही थी कि इतनी डिमांड है, फिर हम लोगों ने जब वितरण शुरू किया तो उस टाइम दिक्कत आई कि जो लिस्ट है वो बदल गई। जिन लोगों की लिस्ट आई वो लोग तो पहुंचे नहीं, उससे पहले डबल लोग दूसरे आ गए। तो फिर हम में से कोई एक व्यक्ति जा कर के जहाँ स्थिति ज़्यादा खराब हुई वहाँ हमने शुरू करवाया। यूनियन का नेटवर्क ये था कि एक तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे कि अब उन लोगों ने बोल तो दिया कि हमारे पास अजीम प्रेम जी ने कहा कि हम 5,000 किट आपको देने वाले हैं, तो वो देने वाले हैं, पर हमको ये नहीं पता कि हम किसको जाके राशन दें। वो लोग हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो हमारा एक रोल था। जो लोग आइडेंटिफाई हो गए उन तक वो सामान पहुंचे, ये सुनिश्चितता हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हम लोग कर रहे थे। फिर वो पहुंच गया, उसके बाद उनकी कुछ रिसीविंग कि आप साइन कराएंगे, वो एक डिग्निटी का मामला भी था, ये भी बहुत उठा था कि हम दान दे रहे हैं और हम साइन करा रहे हैं और हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी उठ रहा था। कुछ लोग फोटो ले रहे थे, फेसबुक पे डाल रहे थे, तो वो फिर सरकार की तरफ से भी बैन हुआ, और हम सब लोगों ने विरोध किया कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ये डिग्निटी का मामला है, अभी लोग मजबूरी में हैं तो वो ले रहे हैं। तो हमारा रोल यही होता था, हम मीडिएटर में थे उस टाइम, दोनों साइड, उधर से व्यवस्था भी करा रहे थे और जो पात्र है उस तक पहुंचा रहे थे, और यदि जहां अराजकता फैल रही थी लिस्ट का ये शुरू किया था। लोगों ने कहा कि हमको बहुत ज्यादा राशन की जरूरत है। अब एक कॉलोनी में करीब 1000 लोग रह रहे हैं, 500 लोग हैं, तो अब सबके लिए तो राशन नहीं होगा, सबकी एक जैसी स्थिति नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि किसी का काम बंद नहीं था, और किसी का काम बंद था तो उनको तनख्वाह मिल रही थी। बहुत सारी महिलाओं के बच्चे फैक्ट्री में छोटे छोटे काम कर रहे थे, तो कुछ जगह पे उनका बंद नहीं किया, कई जगह हाफ पेमेंट में भी थे। तो ऐसे लोगों को हमको सेट नहीं करना है कि भाई जिनका चल रहा है, बिल्कुल ही खाने की नौबत नहीं है, बाकी की बचत नहीं होगी, जैसे पहले खा रहे थे वैसा नहीं खा पाएंगे। पहले हम अंडे भी खा रहे थे, एक टाइम में हम नॉन वेज भी खा रहे थे, दूध भी ले रहे थे, हो सकता है अभी हम सब्जी रोटी दाल ही खा पाए, पर जिसके पास सब्जी रोटी दाल नहीं है उन तक वो सामान जाए, तो वो लोग कौन है? तो वो ऐसे लोगों की लिस्ट बन रही थी वो। तो उसमें वो लोकल जो वॉलंटियर थे, उनके बच्चे थे, वो ही काम कर रहे थे। वो जाते कि उनको तो आपस में घूमते फिरते थे, एक दूसरे से मिल भी रहे थे, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, और वो बताते कि उसके घर की ये दिक्कत है, उसके ये। पहले हम लोगों ने लिस्ट लिया कि आप लिस्ट भेजो, इधर से हम लोगों ने एक फॉर्मेट बना दिया पहले से ही कि उसका नाम पता जो मोटा मोटा एक चाहिए, और हर कोई भर देगा, जो 5वीं छठी पढ़ा है वो भी उस फॉर्मेट को भर के और किसी के भी फोन से फोटो खींच के भेज सकता है, ऐसा बनाया। तो वो उसमें काफ़ी गड़बड़ आई। फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये पता किया कि किसके घर में बड़े वाला फ़ोन है, जिससे हम एक जूम कॉल कर सके या हम गूगल मीट पे बात कर सके। तो हमने कहा कि क्या फिलहाल आप 5 या 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, स्थिति में हैं बैठने की, या आपको डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा कोई डर नहीं लग रहा, मास्क लगाएंगे बैठ जाएंगे। तो हमने ऐसे करके पूरे इलाके का 3-3, 4-4 इलाकों का जो मीटिंग किया, उसी के ऊपर गूगल मीट की, आज इस इलाके में करेंगे दोपहर में, और इधर करेंगे, उनसे टाइम ले लिया। तो एक ही दिन में 3-3 जगह हमने कर लिया और उनको वो फॉर्मेट समझाया। फिर हमने कहा कि आप तो कुछ ही मत करो, खुद का ही भर के भेज दो हमको, और फिर वो देख लेंगे। ऐसे करके हम लोगों ने किया, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चे इतना ट्रेंड हो गए। बाद में जो बैंक की लिस्ट आई, जो रामा दीदी ने बात की होगी केस ट्रांसफ़र वाली, वो लिस्टें उन बच्चों ने बनाई,
और उनको मज़ा आया नहीं, खूब मज़े आ रहे थे उनको कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हमने क्या किया कि पूरे फील्ड को इक्वल किया पहले तो। उसमें हमारे पॉइंट तो पहले से ही निर्धारित थे कि इतने पॉइंट है, और उसमें से भी हमको ये पता था कि इतनी संख्या में यहाँ पे इतने लोग हैं, इनको राशन की ज़रूरत है, और इतने लोग हैं कि यहाँ पे संख्या में ज़्यादा निकलेंगे, हमारे पास संख्या कम है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हम ज़रूरतमंद को खोजते थे, फिर हम प्राथमिकता देते थे जो एकल लोग हैं, महिलाएं खास करके एकल रह रही है, या कोई उनके घरों में अभी लोग बीमार हैं, या विडो महिला है, या अभी अभी गांव से आई है और आते ही लॉकडाउन लग गया, तो हम उन परिवारों को प्राथमिकता दे रहे थे। और जिनके घर में अभी कमाने वाला है और थोड़ा ठीक ठाक है, उसकी बचत भी है उसके पास में, तो वो हमको पता रहता है, हम फील्ड में काम करते हैं तब, कि उनकी ये स्थितियां हैं, तो हम उनको फिर नहीं देते थे। उनको हम तब भी देते थे जब राशन की संख्या ज़्यादा होती थी। नहीं, वेरिफिकेशन का माध्यम था इसमें। माध्यम ये था कि जो हमारे यूनियन की जो लीडर महिलाएं थी वो वेरीफाई कर रही थी, तो छोटा मोटा फॉल्स भी हुआ होगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% सत्य हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हुआ, पर हमने कंट्रोल काफी किया उसको कि वो सही पात्र तक जाए। उन्होंने ये तो बोल दिया कि हमारे पास 500 किट है, आज भी हमारे पास 500 किट है, और हमको ये 500 किट 3 जगह भेजने, उनकी तरफ से जो कॉल आता था। तो अब हम भेजें कहाँ, वो 500 लोग कहाँ पे हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, वो लिस्ट हमारे पास होती थी एडवांस में। तो हम उनको ये कहते कि आप ये जो 500 हैं, हमारे पास आज 6 जगह की लिस्ट है, तो 6 में हमको 3 जगह अर्जेंट लग रही हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, और ये उनको भेज दीजिए, वहाँ पे हमारा व्यक्ति मिलेगा, 2 वॉलंटियर या 3 वॉलंटियर हम एक पॉइंट पे रखते थे, वो वॉलंटियर के नंबर और उसका एड्रेस हम देते थे उनको, वो डायरेक्ट वॉलंटियर से बात करते थे कि हम आ रहे हैं, इतने राशन के किट होंगे। तो वो एक जगह की बड़ी दिक्कत थी कि राशन रखें कहाँ। तो कुछ महिलाओं ने ये जो वॉलंटियर कर रही थी, इन्होंने अपने घरों में रखा, जैसे रहीमा जी है, उन्होंने अब जहाँ ऊपर रहती है, नीचे जो दुकानें हैं उसमें से जो उनका मकान मालिक था, उन्होंने एक दुकान उनको अलॉट कर दिया फ्री में। उसने कहा आपका जब भी रात बेरात कभी भी सामान आए आप इस दुकान में रखिए, यहाँ से आप वितरण करिए। बासना जी के यहाँ पे सोसाइटी का ऑफिस चलता है, वो बंद था, तो वो पूरा खाली था, उनके वहाँ पे उस तरीके का मदद। और कई जगह स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास कुछ है ही नहीं, लोग ज़्यादा हैं, हम लोगों ने तो लिस्ट दी है 200 लोगों की, लोग निकल रहे हैं 400। तो हमने सीधा बोला, हमने LIC को बोला, डायरेक्ट एक्शन एड को बोला कि ये अभी राशन, और अजीम प्रेम जी को भी बोला कि यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक किट को हमको 2 जगह करना पड़ेगा। उसका साथ वाला उसके घर में भी नहीं है, तो वो महिला खुद ही ये चाह रही है, वो पुरुष खुद ही ये चाह रहा है कि मैं 2 जगह बांट लूँ, कि मैं मेरे पड़ोसी को आधा दे दूँ और आधा मैं ले लूँ। नेटवर्क के साथ हमारा पहला कांटेक्ट ऐसे हुआ कि एक ही महिला थी चंद्रकला, और वो महिला माइग्रेंट थी। उसके साथ में दिक्कत क्या थी कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन उसका पति गांव में छूट गया, वो उसको आने वाला था और लॉकडाउन हुआ, तो ट्रेनें व्रेनें सब बंद, उधर वो बच्चों के साथ यहाँ अकेली थी। एक पुलिस वाले ने उस महिला को मीना जी से मिलवाया, मीना जी को बताया, मिलवाया भी नहीं, कि ऐसी एक महिला है और उसके पास कुछ नहीं है, और अभी मैं 500 रुपये का राशन दिला के आया हूँ। तो मीना जी ने खोजा, बात, वो उसके नंबर मिल गए, फिर खोजा, फिर बात करना शुरू किया। फिर मीना जी ने बात की तो उसने कहा कि मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है चावल का, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसको हमने दिलाया, तो वो बात हम लोगों ने फिर शुरू की, और एक्शन एड काफ़ी बड़ी मात्रा में रिलीफ का काम उस टाइम कर रहा था। तो हमने इनको बताया, फिर इन्होंने और लोगों को पकड़ा, फिर जोमेटो हमारे पास आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जहाँ स्थिति है तो हमारे पास इतने राशन के किट है। राजस्थान में 2 या 3 तरह के नेटवर्क हैं, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जॉइंटली करते हैं। जैसे कोई अचानक से कोई दंगा हो गया, उसके ऊपर काम करेंगे, महिलाओं के साथ कोई हिंसा हुई उस पर काम करेंगे, या कोई आपदा आ गई उस पर करेंगे। उस टाइम सब लोग एक साथ थे और ये नहीं देख रहे थे कि कौन किस संगठन से है,
कौन सी पार्टी से है, कौन से एनजीओ से है, उसमें हमको जाना कि नहीं जाना, ये सब चीज़ें बीच में थी ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हम जनता के बीच में रिलीफ कैसे पहुंचाएं और जो लोग दिक्कत में हैं उनकी मदद हम कैसे करें। ये काफ़ी पुराना है, ये हर मुद्दे पे एक जॉइंटली काम करता है। हम लोगों ने उन लोगों को बांटा जो यहाँ आगरा रोड पे है, जयपुर से यहाँ से जाम हम बैठे हैं, यहाँ से करीब करीब 22 से 25 किलोमीटर। उस बस्ती में कुछ भी नहीं पहुँच रहा था, माइग्रेंट बस्ती है। तो हम लोगों ने ज़्यादातर राशन उन लोगों को दिया, वो जो 3000 किट लिए। नहीं, उस टाइम ये बिल्कुल नहीं था, और उस बस्ती की तो रियल में बहुत बुरी हालत थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। 96 से हम लोग उनके संपर्क में थे, और उनको जब रिहेबिलिटेशन हो रहा था तो उसमें हम लोग शामिल थे, और हम लोगों ने करवाया था, उनका रिहेबिलिटेशन भी करवाया था। तो कुछ लोग हमारे को फ़ोन कर करके सूचनाएं दे रहे थे। उसी दौरान हम लोग लगातार जिला कलेक्टर के संपर्क में थे, और जिला कलेक्टर लगातार अपनी भूमिका में था, और प्रशासन भी लगा हुआ था उसकी तरफ से पूरा। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दिया उस टाइम, 108 नंबर, तो हम लोग सब उस पर फ़ोन करते थे ये, और उसके ऊपर जैसे ही फ़ोन करते थे तो वो तुरंत रिस्पॉन्स भी आता था, कहाँ किसको राशन चाहिए, सूखा चाहिए, गीला चाहिए। फिर ये इंदिरा रसोई शुरू हुई गीले राशन के लिए, कि जो बना नहीं पा रहा, कुछ संसाधन ही नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो खरीद के तेल कहाँ से लाएगा, ये सब चीज़ें कहाँ से लाएगा, तो वो इंदिरा रसोई में खाना खाए। फिर सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की, तो सरकार ने सूखे राशन का भी किया, पर वो बहुत कम था। 5 किलो आटा दे रही थी, 2 किलो दाल दे रहे थे। तो 5 किलो आटा जिसके घर में 5 लोग हैं उनको तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। जिनके पास राशन नहीं था वो तो सब श्रमिक लोग हैं, तो उनका तो पूरा न्यूट्रिशन ही उस आटे से, उस दाल से, उसी से आता है। ये माहौल करीब करीब 6 महीने तक लगातार था, और 6 महीने तक तो फिर थोड़ा 3 महीने तक बहुत ज़्यादा पीक पे था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्थितियाँ ठीक शुरू हो गई। एंड में तो स्थिति ये हो रही थी लोगों की, सितंबर आते आते लोगों को ये लगा कि हमको काम पे बुला ले, हमको नहीं चाहिए अभी इतना घर में। अब कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हम गीला राशन कितना खाएं, जैसे सरकार ने कुछ जगह इंतजाम कर रखे थे, अक्षय पात्रा के माध्यम से, इंदिरा रसोई के माध्यम से कुछ लंगर चल रहे थे। ये जो सिख समुदाय है वो अपना, उनकी एक परंपरा है, वो चलाते हैं, और उन्होंने बहुत काम किया था उसमें, तो वो चला रहे थे। अब लोग उब गए उस खाने से, तो उनको लगा कि यार कुछ भी नहीं है, हम तो एक दाल और चावल खुद के हाथ का ही बना के खा लें। तो वो गैस की समस्या थी, पैसा नहीं है लोगों के पास नगद, वो कहाँ से आएगा, उसकी समस्या थी। तो वो एक दिक्कत हो रही थी उसमें, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लोग काम मांग रहे थे उस टाइम, कि हमको तो काम दिला दो, अब हमको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, राशन और ये सब चीज़ें, तो वो भी हम नहीं कर पा रहे थे बहुत सारी चीज़ें उनके। नहीं, सक्सेसफुली तो हम नहीं कह सकते इसको, कि बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर थी, और ये यदि सक्सेसफुली ये तो होता तब, इसमें एक सुझाव भी है कि सरकार और जो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग, सिविल सोसाइटी, एनजीओज, संगठन, ये सब मिल करके एक कंबाइंड बेहतर मीटिंग करते, और उस मीटिंग में प्लानिंग बनती कि हम लोग ये पार्ट संभालेंगे, बोल ये पार्ट संभालेंगे, और उसका एक अच्छा सा एक विभाजन होता, तब जाकर के बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता था। उस टाइम तो हो क्या रहा था कि जिसके जैसी समझ में आ रही थी वैसे जा रहा था। जैसे मुझे समझ में आई कि यहाँ पे ये हो रहा, मैंने 10 लोगों को फ़ोन कर दिया, मैंने बोल दिया ये कर दो। अगली बार, पहली बात तो हो ही नहीं है इस टाइप का, यदि कुछ हो भी या कोई और भी होता कुछ, तो पहले बेहतर प्लानिंग हो, एक बार लोग बात तो करें आपस में कि ये हमारे इस तरह का ज्योग्राफिक एरिया है, यहाँ पे इतनी संख्या में इस तरह के लोग हैं, इधर इतने माइग्रेंट लोग हैं, या इधर इस स्लम में इस टाइप के लोग हैं जिनको ऑलरेडी पीडीएस की सुविधा मिल रही है, और तो वो एक आंकड़े भी हों हमारे पास,
और उस आंकड़ों के आधार पे फिर हम जाएं और जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर के हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हमारे शहर में कितने लोग हैं जो दिहाड़ी पे डेली मजदूरी करते हैं, इस टाइप का कोई आंकड़ा तो हो, सरकार के पास हो। फिर कितने माइग्रेंट लेबर है जो सीजनल वाइज आता है जाता है, या कितने ऐसे लोग हैं जो आकर के यहीं बस गए और अब यहीं रह रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पीडीएस उठा रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं कि जो कैटेगरी में आते हैं पर वो पीडीएस उनको नहीं मिल रहा है। तो फिर ये बेहतर और ज़्यादा बेहतर काम हो सकता था, और जो इसमें जो खामियां रही छूटा वो शायद नहीं छूटता उस टाइम।